on a chessboard, when you have only knight, the horse, and if a horse has to travel to each and every square on the chessboard, visiting only once, that entire path of the horse is called as knight's tour or tour of the knight. It's basically a mathematical problem as to you don't repeat the square, but you have to travel all across the chessboard, visiting every square just one time with your knight. It is a reasonably complex mathematical problem, and the solution to this mathematical problem was given by Rudrata, a Kashmiri poet of 9th century, in a very beautiful way. He assigned vowels and consonants to the grid of 8 by 8, representing exactly the chessboard. If we simply follow the lookup table, we can see the pattern goes pa, si, pu, se, te, ne, che, and so on and so forth. How come this is poetry in any case? By 8, representing exactly the chessboard construct. And this grid acts as a lookup table and following the path of the knight as you are seeing here how it's progressing. He created poetry, or rather Sanskritam verses, which when recited against the lookup table gives you the path of the knight. Let me repeat if it's... Even if we look at the verse and try to navigate it through the lookup table, we won't get anything because the first is sa with the halant and there is no sa with the halant in the lookup table. Chalo, even if we assume that the sa, normal sa 7a is equal to this sa, even then when we start navigating we get sa, pi, su, pe, re. How come this sequence is relevant to the given shlok? We cannot traverse this shlok given on the lookup table. Let's get to the practical purpose of why Aryabhatta codified this Akshara Sankhya system. In the 12th slokam of Geetika Pada Aryabhattiya, a treatise on mathematics and astronomy written by Aryabhatta, this slokam, what you're seeing on the screen, this slokam represents the sequence of a sine wave. These are the R sine differences in terms of minutes of an arc. Remember the good old trigonometry lessons that you studied in your high school? Basically how your sine wave traverses up and down. Those values in terms of minutes of arc are codified by Aryabhatta. For the first time in the world, the sine wave was invented and codified by... But where is that mapping which maps Akshar to Sankhya, and how that mapping is developed? And more importantly, even if this sequence represents a sine wave, what is done after writing this sequence? What was the application of this sequence? Sutra. And here is an example. Gurutva Prayatna Samyoganam Ukshepanam. The translation is, an upward throw of an object is the resultant of upward thrust and downward gravitational pull. This is a sutra written by Kanada Maharshi describing gravitational force as part of Vaiseshika Darsana. As you can visibly see the difference, the line in Sanskritam is barely one word, or one long word. But to translate that into English, I am in need of at least 8 to 10 words, and it is 2 lines long. The aphoristic nature of Sanskritam is exceptionally beautiful because it is even relevant today, where you could condense huge meaning and sense into very short format in Sanskritam. But Sanskrit is not the only language in the world with this nature. It is called agglutinative property. There are other languages in the world which have this similar property, where one word can be expanded to form a very long sequence. And sometimes English also has such words. The entire slokam goes. So that's hardwired into them. Let me give you a small analogy. Just by knowing the DNA sequence or the DNA sample of a person, we can pretty much reconstruct what kind of a person he or she would be, physically, mentally, emotionally, etc. Same way, this is a pure lie. We cannot know emotional profile of any individual by his or her DNA sequence. Same way, just by knowing just one pattern or the chandas in which a Sanskritam slokam or a bunch of slokas are written, you can reconstruct the entire sequence. And they are very much... I suppose chandas is just the meter of the verse, and I'm still not sure how can one reconstruct the entire verse just by knowing the meter of the verse. One can argue that it is like if you know the melody of the song, you can recall the lyrics of that song. But that argument will fail because many verses are written in the same meter. They are very much mathematically and rhythmically aligned. This property of Sanskritam, I'm not saying directly it can be used like just an XML or something. He is just simply saying that they are mathematically aligned. I'm still not sure how. Contextual and simple. 14 Shiva Sutras and 4,000 grammar rules. That's it. That's all Sanskritam has been, based on Panini's Ashtadhyayi. And its grammar is in a more of a generative nature, where you can fuse and create new words, new meanings, new senses, well within the same framework. Grammar of every language is generative in nature. So Sanskrit is not special in that sense. But yes, it is a language whose grammar's rules are most exhaustively written.
Writing software in Sanskritam. Is it a truth or hoax? It is neither truth nor hoax because we haven't done enough research on the subject yet to get a conclusive answer to that question. Nonetheless, with all my conviction, what I can say for sure, based on my researches, there is one field in technology that's computational linguistics. In simple words, kind of natural language processing, understanding what we are speaking and translating it to making it a sense towards the machines. So that field of computational linguistics definitely is highly relevant for Sanskritam. It would take a lifetime to understand. I do research in natural language processing and I have experience of several years. I'm still not sure how Sanskrit would be incorporated in modern natural language processing. Old natural language processing systems relied on such rules, but modern NLP techniques have abandoned that direction long ago. Way, there could be certain properties of Sanskritam which could help us solve modern day problems in computational linguistics. We don't know anything about that yet. Maybe one of you watching this video could start your. First, he said that with all his conviction, he can say that natural language processing can benefit from Sanskrit grammar, and then he say Sanskrit could offer something new. So either he is convinced or not. आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में छुपे हुए अद्भुत ज्ञान के बारे में। दोस्तों, जब से इंटरनेट पे ये बात फैली है कि संस्कृत को लेकर नासा ने दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही उपयुक्त भाषा है, तो बहुत से भाई मेरे इसका प्रसार करते हैं। कुछ भाई मेरे स्केप्टिकल, उनको पता नहीं है कि ये बात सच है कि नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि नासा के एक साइंटिस्ट ने 1985 में एक रिसर्च पेपर निकाला था जिसका नाम था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन। मैंने भी ये पेपर पढ़ा है और इस पेपर का क्रक्स यही है जो इसके टाइटल में लिखा है कि संस्कृत जिस तरीके से लिखी जाती है इतने सारे रूल्स के साथ, उनकी वजह से उसके लिखे हुए टेक्स्ट से सिमेंटिक नेट्स बनाना आसान होता है, और एक बार आपके सिमेंटिक नेट्स बन गए तो उसको यूज़ करके आप नॉलेज रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हो। और जिस टाइम पे पेपर लिखा गया था 1985, उस टाइम पे अगर आपके पास सिमेंटिक नेट्स अच्छे हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, तो आप उसको आगे यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बना सकते थे। ये इस ओवरऑल पेपर का क्रक्स था कि संस्कृत से सिमेंटिक नेट्स बना सकते हो, सिमेंटिक नेट से नॉलेज रिप्रेजेंट हो सकती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे यूज़ होगी। ऐसा नहीं बोला गया है। जो बात की गई है रिसर्च पेपर में, वो ये बात की गई है इंटरफेस की। जो प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है वो किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सब जिब्रिश है। कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, आप जब तक उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं बदलेंगे, कंप्यूटर को नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए इंटरफेस की बात की गई है कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस बनेगा। ये बात थोड़ी हद तक तो ठीक है कि पेपर भी यही स्टैंड लेता है कि संस्कृत को एज ए इंटरफेसिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया का हर इंसान अपना टास्क संस्कृत में लिख के कंप्यूटर को देने लग जाए तो उस टास्क के अंदर जो नॉलेज होगी उसको रिप्रेजेंट करना कंप्यूटर के लिए आसान हो जाएगा। अब उस रिप्रेजेंटेड नॉलेज को यूज़ करके कंप्यूटर बाकी का टास्क कर सकता है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि संस्कृत को पास करके कंप्यूटर इंसान की लैंग्वेज समझ पाएगा। वो अंडरलाइन टास्क ज़रूर कर पाएगा अच्छे से, लेकिन उसको लैंग्वेज समझ के करना क्या है। इनफैक्ट पेपर भी कुछ यही क्लेम करता है कि उस टाइम पे जो संस्कृत लिखी जाती थी वो ज़्यादा ही नॉलेज के साथ लिखी जाती थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज इम्बाइब होती थी। अब वो क्यों होता था ऐसा, उसका भी उन्होंने रीज़न दिया है कि वो लोग इस संस्कृत लैंग्वेज को लिखने वाले लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट थे नहीं, वो उनके अंदर बस एक क्यूरियोसिटी थी कि वो अपनी लैंग्वेज को आसानी से समझ पाए। अब उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जो आगे जाके नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है, वो अलग बात है। डेवलपमेंट में जरूरत है। और ऐसा क्या हुआ कि संस्कृत को ही बोला जा रहा है और किसी लैंग्वेज को, हिंदी को, इंग्लिश को, स्पेनिश को, पोर्चुगीज को या किसी अफ्रीकन लैंग्वेज को नहीं बोला जा रहा है? अब हम ये समझ लेते हैं। दोस्तों, 21st सेंचुरी में जितनी भी नहीं, पेपर कहीं भी ये क्लेम नहीं करता कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ संस्कृत में ही यूनिक है और बाकी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। पेपर बोलता है कि हाँ संस्कृत में एग्जिस्ट करता है, अब बाकियों में करता है कि नहीं इस पर कोई पेपर क्लेम नहीं करता। जितनी भी भाषाएं हम बोलते हैं दुनिया भर में, वो सब शुद्ध नहीं रह गई हैं। हम लोग ग्लोबली इतना कनेक्ट हो गए हैं कि एक भाषा ने दूसरी भाषा से बहुत चीज़ें चुरा ली हैं। जैसे अभी मैं हिंदी भी बोलूँ ना तो उसमें उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तो मिलेगी ही। तो इसलिए इतनी मिलावट के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए साइंटिस्ट को ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो प्योर हो, ज़्यादा मिलावट ना हुई हो। यहाँ पे मिलावट जो शब्द है ये एक नेगेटिव शब्द है। संस्कृत में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लैंग्वेज प्योर है, इसलिए होता है क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत सारे रूल्स पे और रैशनल रूल्स पे बनी हुई है। अब यही उसकी स्ट्रेंथ है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ये उसकी कमज़ोरी भी है। इतने सारे रूल्स की वजह से उसको बोलना मुश्किल हो जाता है। बोलना मुश्किल हो जाता है तो लोग ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं करते, लोग वो यूज़ करते हैं जो आसानी से बोली जा सके। उसके चक्कर में उन लैंग्वेजेस में एम्बिग्विटी आ जाती है और जिसकी वजह से उनकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मुश्किल हो जाती है।
समय में पीछे गए। आप जितना पीछे जाएंगे लैंग्वेजेस उतनी कम होती जाएंगी। समय में जब आप बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत कम 5-6 लैंग्वेज बचेंगी, जैसे कि संस्कृत बची, ग्रीक बची या लैटिन बची। तो वहाँ पे मिलावट की चांसेस बहुत कम थी, क्योंकि लोग नहीं, इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत इसमें इसीलिए ज़्यादा नॉलेज रिप्रेजेंट करी जा सकती है क्योंकि उसमें सारे रूल्स बने हैं। क्योंकि संस्कृत से पहले भी काफ़ी लैंग्वेजेस थी, उनमें इतने रूल्स नहीं थे, तो इसीलिए उनकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पावर कम है। तो संस्कृत की स्ट्रेंथ उसके ढेर सारे रूल्स हैं। अब संस्कृत सिखानी है, संस्कृत ही आती है, तो कैसे करेंगे? उन्होंने एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, मतलब उनकी बुक है जिसमें 4000 सूत्रों में उन्होंने संस्कृत कैसे सिखाना है देखा। हमारे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स ने देखा तो पाया कि उसमें एक मेटा भाषा है। मेटा भाषा क्या होती है कि जैसे एक रियल भाषा हुई संस्कृत, जिसको हमें सिखाना है, उसको सिखाने के लिए एक मेटा भाषा बनाई गई, पाणिनि जी ने डेवलप की। वो मेटा भाषा भी इसी रियल भाषा से निकल के आई है। आप देखिए कितना अद्भुत है, एक मेटा भाषा है जिसको रियल भाषा को सिखाना है और वो भाषा खुद इसी भाषा से निकल के आई है। तो मतलब ये इतना बेहतरीन एग्जाम्पल था और कोडर्स को बहुत पसंद आया। जो कोडर भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको रिकर्सन का कॉन्सेप्ट पता होगा। ऐसा लगता है जैसे इस इंसान का एम है ये प्रूव करना कि संस्कृत एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी है, पर ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ रूल्स के बेसिस पे नहीं बनी होती, उसमें ऑपरेटर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, रिकर्शन होता है। लेकिन संस्कृत जो लैंग्वेज है ये ग्रामर पे बेस्ड है, जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो सिर्फ रूल्स हैं उसके अंदर, इस बेसिस पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन जाती। मैंने जैसे बताया कि हम आगे नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसमें एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे कि इसमें कीवर्ड को संज्ञा बोल सकते हैं, जो हमारा ऑपरेटर होता है लैंग्वेज में उसको यहाँ पे प्रत्यय बोला जाता है। अगेन यहाँ पे जो ऑथर है ये संस्कृत के रूल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पैराडिम से कंपेयर कर रहा है। ये ओरिजिनल ऑथर्स ने नहीं करा था, जो रिक्स ब्रिग्स है उसने नहीं करा था। ये इस इंसान की अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, जो कि मुझे इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। क्या क्या दिया है, क्या क्या संस्कृत के बारे में बताया विद एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें संस्कृत और इंग्लिश को कंपेयर किया गया है। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं इंग्लिश के अलावा। ऐसा हिंदी में जैसे बोलेंगे कि राम जाएगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि राम विल गो। और इसमें अगर ऑर्डर चेंज हो गया विल राम गो तो बेकार हो जाएगा सब, मतलब कि फिर तो मीनिंग ही बदल जाएगी। संस्कृत में क्या होगा कि राम गच्छस्यति। अब इसने दूसरा एग्जांपल दिया कि हर वर्ड जो है काफी मीनिंग्स को संभालता है। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस लें हिंदी में कि लड़के पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या होगा कि बॉयज बता दे रहा है, सब्जेक्ट हो या ना हो बता दे रहा है कि इसमें लड़के होंगे, या जो भी करता है वो एक से ज्यादा है क्योंकि इसमें अंत्य आ रहा है। अब इसमें अश से आ रहा है, इसका मतलब ये भविष्य में होगा। ये खुद ही पठिशन्ति में ही सब सम्मिलित है। इसने ये बता दिया कि प्लूरल होगा कर्ता और भविष्य में बात है, और पट से पता चल गया कि पढ़ाई होगी। तो कंप्यूटर बोला जाता है तो हम इमेजिन करते हैं, पिक्चराइज करते हैं कि जॉन हो, अगर उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर उसको प्रतिक्रिया देनी है तो क्या दे पाए, बहुत ज्यादा चीजें उसके पास है नहीं, तो नहीं पकड़ा हो। तो हम इंसान हम समझ जाते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्ट को, और इसका निराकरण ऋषियों ने किया। ऋषियों ने इसका सोल्यूशन बताया। ऋषियों ने बोला कि कारक, उन्होंने बताया कि कारक होते हैं किसी भी सेंटेंस में, और कारक 7 तरह के होते हैं। जिसमें कर रहा है मतलब इसमें जॉन काम कर रहा है, बॉल दे रहा है, आता है उसका मतलब हो गया कि से द्वारा, मतलब कि अलग हो रहा है। तो बॉल कहाँ से अलग हो रहा है, हाथ से अलग हो रहा है। फिर हम ये भी सोचेंगे कि दोनों लोग कहीं पे हो सकता है फील्ड में हो, स्टेडियम में हो, बॉल, या फिर अपने घर पे सकते हैं, एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, एडवर्ब भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है, ब्यूटी नाउन है। अब इसको ब्यूटीफाई करना मतलब वर्ब हो गया, एक एक्शन हो गया। उसके बाद आप इसको ब्यूटीफुली कर देंगे तो एडवर्ब हो गया, कैसे काम कर रहा है, ब्यूटीफुली काम कर रहा है। एडजेक्टिव बनाना है तो ब्यूटीफुल बोल देंगे। तो इंग्लिश में एक जो नाउन है वो 3 तरह के और रूप ले सकता है, लेकिन संस्कृत में ये 7 तरह के रूप ले सकते हैं। जैसे मैंने विभक्तियां आपको बताई, तो ये रूप बढ़ जाते हैं, एक ही वर्ड नहीं रह जाती है, और कंप्यूटर के लिए आसान हो जाता है, बहुत सी चीजें कवर कर लेती हैं ये विभक्तियां। तो इसीलिए जो कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है संस्कृत, इसीलिए रिसर्च पेपर में बताया गया कि आप अगर इंटरफेस में इसको यूज करेंगे तो कंप्यूटर की हाँ, इस एनालिसिस से तो मैं एग्री करता हूँ, और मैंने पेपर पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये एनालिसिस ही पेपर में डिस्कस किया गया है। संस्कृत के अंदर जो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वर्ड ऑर्डर, वर्ड इन्फ्लेक्शंस, कारका और शब्द रूप, इंडिविजुअली इन सब की वजह से वर्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आसान होती है। और जब ये सारी प्रॉपर्टी संस्कृत में मिल जाती है तो संस्कृत एक अच्छी कैंडिडेट बन जाती है, बल्कि बेस्ट कैंडिडेट बन जाती है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हाँ, ये एनालिसिस इस इंसान की अच्छी है। हर भाषा को समझने के पहले उसके फंडामेंटल अल्फाबेट को समझना पड़ता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो मनुष्य की लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज हो। एक फंडामेंटल अल्फाबेट्स होते हैं। अगर हिंदी आप उठाएं तो उसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, जो बेसिक अल्फाबेट्स हैं, जैसे क ख मिलेगा। जैसे हिंदी में क्या है, हिंदी में हम बोलते हैं कि ककार जो है हमारे कंठ से निकलते हैं, समानाएं भी बोलते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ लेटर्स या फिर लिस्ट ऑफ साउंड्स। लेकिन श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से ये माना जाता है कि जब शिव जी ने डमरू, इस वीडियो में भी ये ऑथर ट्राई करता है कि ये संस्कृत को कंपेयर कर पाए या इक्विवेलेंट साबित कर पाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, लेकिन अभी तक तो संस्कृत एक नेचुरल लैंग्वेज से इक्विवेलेंट ही साबित हो रही है। क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज में ये चीज़ होती है कि स्मॉलेस्ट अनडिवाइजेबल साउंड को एक कैरेक्टर दिया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता। करते हैं, ये समझ लेते हैं। दोस्तों ये 14 महेश्वर सूत्र काम कैसे करते हैं, इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले अनुबंध और प्रत्याहार को समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं समझा देता हूं। अनुबंध क्या है, अनुबंध को इत संज्ञा भी बोलते हैं। ये जो 14 महेश्वर सूत्र आपकी स्क्रीन पर, जब जैसे आपने एक प्रत्याहार ले लिया, अच क्या है, आपने आ उठा लिया प्रथम सूत्र से, चा उठा लिया जो आपके अनुबंध है,
तो आप क्या करेंगे, एक कागज़ लीजिए, उसमें आ से शुरू कीजिए और चा तक जाइए महेश्वर सूत्र में, पूरे अक्षर लिख लीजिए और उसके बाद अनुबंधों को काट दीजिए, जो भी अनुबंध ठीक है, जो इंसान ये बोल रहा है हम मान लेते हैं, लेकिन इसने इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया है। कोडिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स की बात की थी। हर कोडिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स की एक सेट डेफिनेशन होती है, उनको आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। जैसे कि आप कोडिंग में लिखते हैं इंट x इक्वल टू, स्पेशल वर्ड्स होते हैं, मेटा भाषा का पार्ट होते हैं, इनकी सेट डेफिनेशन होती है। तो पाणिनि जी की जो व्याकरण है उसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे वृद्धि, गुणा। नहीं, अगर ये बोल रहे हैं कि संस्कृत एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ये सारे कीवर्ड्स हैं, तो फिर उस केस में ये इनमें से कोई भी वर्ड स्ट्रिंग के बाहर या कमेंट के बाहर यूज़ नहीं हो सकता। कंपाइलर एरर थ्रो कर देना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा संस्कृत में होता है? आई डोंट थिंक सो। वृद्धि अपने आप में एक शब्द है जो सेंटेंस में नॉर्मली भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो या फिर आपकी जावा हो, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है। आप किसी वेरिएबल, अलग अलग काम है, ये सब पे नहीं लगते। जैसे सुप्रत्यय आपका संज्ञा पे लगता है, आपकी स्क्रीन पर में इनमें क्या लगेगा, स लगेगा। अगर आप राम प्लस स कर देंगे तो रामः बन जाएगा। तो क्या हुआ, राम आपने एक वेरिएबल दिया, संस्कृत में संज्ञा एक वेरिएबल होती है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, आप चाहे प्रथमा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में, जैसे आपने बालक ले लिया, तो बालक क्या है, एक बालक है, लेकिन अगर बहुत ढेर सारे बालक हैं तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? अगर बालक करता है, काम करने वाले हैं, तो कर्ता में जाएंगे, आप कर्ता में जाएंगे मतलब प्रथमा में जाएंगे, और जब प्रथमा में जाएंगे और ढेर सारे बालक है तो बहुवचन में जाएंगे, और बहुवचन में जाएंगे तो वहां से जस उठाना पड़ेगा, तो फिर बालक प्लस जस होगा, और जस को अ बोलते हैं। नहीं, ये ऑपरेटर कम, ये एक सेट ऑफ रूल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑपरेटर अगर किसी वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है तो हमेशा उन वेरिएबल्स के लिए वैसे ही काम करता है। अगर ये ऑपरेटर प्लस का है और यहाँ पे 2 इंट एक्सपेक्ट करता है, तो हमेशा जो आउटपुट होगा वो उनका प्लस ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर 2 और 5 है तो प्लस कर दूँ और 2 और 7 है तो मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि ये ऑपरेटर इनकी वजह से चेंज होता जा रहा है। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं, कोई एक डिफाइंड ऑपरेटर नहीं है। हम लोग बढ़ेंगे फंक्शन की तरफ। तो दोस्तों किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में बहुत ढेर सारे हम फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस हमने बनाया, उसमें कुछ कोडिंग लिखी और हमने उसमें कुछ इनपुट दे दिया, तो फंक्शन क्या करता है, उन इनपुट को लेता है, अपनी कोडिंग को कंपाइल करता है, फिर एक हमें आउटपुट दे देता है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ऑपरेटर और फंक्शंस में ये डिफरेंस होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं अगर वो एक के बाद एक किए जाने हैं और कोई एक सिंगल ऑपरेटर नहीं है जो सारे ऑपरेशन एक बार में कर पाए, तो उन सारी सीक्वेंस को हम एक के बाद एक लिख देते हैं और वो सारी सीक्वेंस मिलके एक फंक्शन बनती हैं। तो अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू अ फंक्शन। तो वो यण बन जाएगा। अब इसमें 2 इनपुट हैं, इनपुट क्या है, इक है और अच है, और आउटपुट क्या है, यण है। अब ये तीनों क्या है, मैंने जैसे सिखाया था आपको कि महेश्वर सूत्र में जाके आप देख लीजिए। जैसे अगर आप अच को खोलेंगे तो आपको ढेर सारे स्वर मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, और इक को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, इ उ री री, तो ये आपको 4 अक्षर मिल गए, स्वर मिल गए। और इसके बाद जब आप यण को खोलेंगे तो आपको य र ल व मिल जाएगा। नहीं, ये भी यहाँ पे ये सेट ऑफ रूल्स की ही बात कर रहे हैं, ये फंक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था फंक्शंस के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा सेम काम करेंगे, चाहे वो किसी भी फंक्शन के अंदर लिखे हों। 2 फंक्शन के अंदर अगर सेम ऑपरेटर लिखा है तो वो दोनों फंक्शन में एक बराबर काम करेगा। यहाँ पे अगर वो रूल्स या जिनको ये ऑपरेटर बोल रहे हैं अगर वो चेंज हो जा रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, देन फिर वो पूरी चीज़ फंक्शन नहीं है, वो एक सेट ऑफ रूल्स ही है वो। कोई अक्षर आ रहा होगा, तो अब आपने 2 इनपुट दे दिया है, एक जिसमें इक और अच है, अब ये मिलकर यण होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि जब इक का ई जो है, ये फंक्शन नहीं है, ये सेट ऑफ रूल्स ही हैं, और जो कि लाजमी है। नेचुरल लैंग्वेजेस में रूल्स होते हैं, ये हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात तो कर नहीं रहे हैं। इसके आगे आपने देखा होगा बिल्ट इन लाइब्रेरीज। कोडिंग लैंग्वेजेस में बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं कुछ, मतलब पहले से लाइब्रेरी आप उसको अगर इंपोर्ट कर लें तो आपको कुछ प्रोग्राम्स लिखने नहीं पड़ते, कुछ कोडिंग लिखनी नहीं पड़ती है, बस उसके आप सीधे जो भी चीज़ें उनको यूज़ करिए। संस्कृत व्याकरण में भी मिल जाएगी, जिसको अनुवृत्ति बोलते हैं। अनुवृत्ति का मतलब यही होता है कि जो सूत्र है वो एक ही चीज़ की बात कर रहा है लेकिन उसको आगे डिफाइन करता जा रहा है, और ये मानता चला जा रहा है कि जो पिछले सूत्र हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, मतलब इम्प्लिसिट हो गए हैं। जैसे कि इत के बारे में मैंने बताया था, इत संज्ञा के बारे में, जो महेश्वर सूत्र नहीं, अभी भी ये सेट ऑफ रूल्स ही लग रहे हैं। ये इस इंसान की इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि मैं इन रूल्स को कभी फंक्शन समझ लूँ, कभी लाइब्रेरी समझ लूँ, वो इस इंसान की पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जहाँ तक मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर सेट ऑफ रूल्स से ज़्यादा अलाइन करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट से नहीं। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचा पाया कि किस तरह से संस्कृत ये नहीं है कि आपने संस्कृत के कुछ शब्द ले लिए और फिर एक कोडिंग लैंग्वेज बना दी। संस्कृत खुद में एक कोडिंग लैंग्वेज है। नहीं, संस्कृत है एक नेचुरल लैंग्वेज ही, लेकिन हाँ उसको लिखने के लिए बहुत सारे रूल्स डिफाइन किए गए हैं, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन इससे वो कोडिंग लैंग्वेज नहीं बन जाती या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन जाती। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो ये भी एक वेब पेज है जो कि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है संस्कृत और एआई में उसके कंट्रीब्यूशन को।